say sin 1/2 minus x/4. ओके, या सीधे ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग इफेक्ट ना। हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। एक मिनट। तो देखो डॉपलर्स इफेक्ट क्या था, ये तो मैंने आप लोग को कल बताया था। एक बार फिर से कर दो। तो देखो, what do you observe when you throw a pebbles into a body of water? ठीक है, तो कल मैंने आप लोग को बताया था द apparent frequency of a source due to relative motion between the source and observer is called the Doppler effect. या सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहें, the change in frequency of a source, the change in frequency of a sound of a given source due to the relative motion between source and observer is called Doppler's effect. ठीक है, तो जैसे कल मैंने आप लोग को बताया था ना कि मान लो सपोज, जैसे मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन अगर आपके नजदीक आ रहा है, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे सपोज आप खड़े हो और ट्रेन आपके नजदीक आ रहा है, तो ट्रेन की जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है ना, क्योंकि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो आपके नजदीक आ रहा है। लेकिन जैसे ट्रेन दूर जाता है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इट मीन्स दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज डिपेंड्स अपॉन द relative motion between source and observer. ये देखो, Doppler effect originated in 1842 by an Austrian physicist Christian Doppler. Christian Doppler proposed Doppler effect in his article. ठीक है, तो ये तुम्हारे कोई एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1842 में इसके बारे में बताया था। For sound wave by Bellot in 1845. साउंड वेव्स में बैलोट ने बताया था 1845। कॉन्सेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? नाउ सपोज द व्हीकल सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स, since the source is moving towards the right, each successive wave is emitted from a position closer to the hour than the previous wave. As a result, the wavefront heard by the observer are close together. ठीक है, तो ये देखो, तो the wavelength lambda therefore measured by the observer is shorter than the wavelength lambda of the source. For every consecutive wave which lasts for a time interval T, the source moves a distance v into t. The wavelength is shortened by this amount. ये देखो, ये आपका पहले यहाँ वेवलेंथ निकाला गया है, ठीक है, और ये वेवलेंथ निकालने के बाद फिर ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाला जा रहा है, या इसी को क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज द apparent frequency. The observed frequency increases as the source is moving toward the observer. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला जो सामने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, यही फॉर्मूला प्रूव करना है। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को इसका प्रूविंग बताया था ना। और देखो, ये सेकंड फॉर्मूला है। सपोज अगर मान लो ऑब्जर्वर अगर सोर्स से दूर, conversely if the source is moving away from the observer, each wave is emitted from a position further from the observer than the previous wave, so the arrival time between successive waves is increased, reducing the frequency. तो देखो, ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है। ये देखो, द जनरल डॉपलर इफेक्ट f dash is equal to v plus vs upon v minus v नॉट। vs का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स और v नॉट का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर।
और v का मतलब स्पीड ऑफ साउंड. This equation applies to all four conditions mentioned previously. The sign of Vs and V naught depend upon the direction of the velocity. A positive value is used for motion of the observer or the source toward the other, and a negative value is used for motion of one away from the other. ठीक है. ठीक है, तो देखो यहाँ v प्लस vs लिखा हुआ है, तो v का मतलब जो है v प्लस vs का मतलब कि साउंड वेव्स और दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है. और v माइनस v नॉट का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के दोनों सेम डायरेक्शन में. v माइनस v नॉट का मतलब ये होता है. ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट का यूज क्या है? In the 1600 years or so since Doppler first described the wave phenomena that would cement his place in history, several practical applications of the Doppler effect have emerged to serve society. In all of these applications, the same thing is happening. One application of Doppler effect found in nature occur in birds hunting for their prey. तो देखो डॉपलर इफेक्ट से जो जैसे ये जो आपका जो बेट जो होता है चमगादड़, वो डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे ही अपना वो शिकार करता है, हंटिंग करता है. ठीक है. Birds navigates its flight by emitting whistles and listening for the echoes. When chasing prey, its brain detects a change in pitch between the emitted whistle and the echo it receives. This tells the bird the speed of its target, and the bird adjusts its own speed accordingly. राडार, देखो राडार में भी इसका यूज होता है. राडार तो आप लोगों ने सुना होगा. राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. The Doppler effect is used in some type of radar to measure the speed of detected object. For example, a police officer uses radar guns to check for speeding vehicles. जैसे किसी बाइक की अगर स्पीड हमें चेक करनी है, तो पुलिस ऑफिसर जो होता है वो राडार गन्स का यूज करता है. The radar gun emits waves at a particular frequency which when strikes the vehicles bounce back towards the gun. या आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच में भी बॉल की जो स्पीड मेजर की जाती है, this is also by the Doppler effect. The radar gun then measures the frequency of the returning waves, then eventually determine the speed. जो रडार गन जो होता है फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, रिटर्निंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, और फिर उसके हेल्प से फ्रीक्वेंसी से स्पीड को फाइंड आउट कर लिया जाता है. Doppler radar is a form of technology used not only by law enforcement officers but also by meteorologists. Meteorologists utilize Doppler effect to determine the direction and velocity of raindrops, wind direction, and other weather events. तो इन सब चीजों को भी हम डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप्स. This principle is very crucial as it allows meteorologists to predict weather patterns including coming storm etc. ठीक है, इफेक्ट का यूज है. मेडिकल डायग्नोसिस में भी डॉपलर इफेक्ट का यूज है. खैर ये सब तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आज देखो, आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो आज हम लोग को डिस्कस करना है. ठीक है, ये सब एक्चुअल में हम आप लोग को फिर से बता रहे थे ताकि एक बार आप लोग को रिवाइज, एक बार आप लोग को हम बता, क्योंकि देखो ये सब चीज से पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज. कभी भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे या वाइवा देने जाओगे तो ये सब पूछा जाता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट का मतलब एप्लीकेशन क्या है. एक मिनट, एक मिनट.
मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? मेरे माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है। एक मिनट, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? नहीं? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअल में हमें साउंड कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर मेरी आवाज नहीं आएगी तो बताइएगा, ठीक है। ये बताओ, लैपटॉप से जब हम बोल रहे हैं तो मेरी आवाज आ रही थी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो देखो, आज का टॉपिक है हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये बताओ, आपसे जब हम बोल रहे हैं तो मेरी आवाज आ रही थी? प्लीज टेल मी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। बताया था। This is the case number 3 in the Doppler's effect. Doppler effect. And this is the case number 3. अब देखो केस नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। When the source moves towards the observer, sorry, apparent frequency when both the source and observer are in motion. Apparent frequency means change in frequency. Apparent frequency when both the observer and source and observer are in motion, ठीक है। source and observer are in motion। ये मैंने आप लोग को अभी पीपीटी में मैंने आप लोग को दिखाया था। यही सेम चीज अब आप लोग को प्रूव करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग द डायग्राम। ये देखो, ये सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये जो पोजीशन जो है, इस पोजीशन को, दिस इज द पोजीशन ऑफ सोर्स, this is the position of source, and suppose the speed of the source is vs, this is the speed of source, okay। और सपोज इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है। एंड अगेन वी आर कंसीडर द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये देखो, ये ऑब्जर्वर का पोजीशन है, ठीक है। इसको o मान लें, o का मतलब ऑब्जर्वर। एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स विथ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है।
तो ये v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और सपोज दोनों के बीच का जो इनिशियल पोजीशन जो है दिस इज l, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का ये जो इनिशियल पोजीशन जो है दिस इज l, ठीक है। तो ये सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का क्या है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन l, ठीक। अब देखो, अब ये सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ड्यू टू द वेलोसिटी। अब ये सपोज सोर्स का फाइनल पोजीशन है a डैश, ठीक है। सोर्स का फाइनल पोजीशन क्या है, दिस इज a डैश। ये अपना पोजीशन क्या कर चेंज कर रहा है ना। उसी तरह से देखो ये जो ऑब्जर्वर जो है ये भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले इसका इनिशियल पोजीशन क्या था b, अब देखो ये इसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया b डैश, ठीक है। ड्यू टू द वेलोसिटी इट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। अब देखो तो ये b डैश हो गया एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ओके। तो सपोज मान लो कि ये जो सोर्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, vs इंटू टी। क्यों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम होता है ना, डिस्टेंस का मतलब स्पीड इंटू टाइम होता है। तो बताओ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोर्स क्या होगा, vs इंटू टी होगा। और बताओ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जर्वर ये कितना होगा, दिस इज v0 इंटू टी ना। दोनों सेम टाइम ले रहा है टू चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन को चेंज करने में दोनों सेम टाइम ले रहा है। तो बताओ सोर्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, vs इंटू टी, और ऑब्जर्वर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, v0 इंटू कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल now I am calculating the time. The observer will receive the first compression pulse at time t1, ठीक है। तो देखो due to initial position of observer and source, due to initial position of observer and source, ठीक है। अब देखो तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम इज t1, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बताओ इनिशियल कंडीशन में सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है l, और दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। सपोज मान लो हम ऑब्जर्वर का टाइम निकाल रहे हैं, तो बताओ साउंड वेव्स देखो कुछ इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है ना, ये देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड v। तो आप जरा ध्यान से देखो ऑब्जर्वर की जो स्पीड जो है वो साउंड के स्पीड के अपोजिट है, तो ये v नॉट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज t1, तो ये आपको क्या मिल गया t1, ठीक है। दिस इज t1। अब आपको t2 निकालना है एट टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, at time t is equal to capital T, okay. Both the source and observer have moved toward each other. Both source and observer are moving towards each other, ठीक है, are moving towards each other, are moving towards each other, ठीक है। तो देखो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, ओके। तो अब देखो द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो बताओ ये सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का न्यू डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा ना। दिस इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दिस इज l माइनस vs इंटू टी माइनस v0 इंटू टी, दिस इज द न्यू पोजिशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ओके। तो बताओ हम लोग t2 निकालेंगे, तो t2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो इनका जो इनिशियल टाइम जो था कैपिटल T, इसमें ये वाला टाइम ड्यू टू दिस डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस कितना है l माइनस vst माइनस v0 इंटू टी, तो इस डिस्टेंस के लिए जो भी टाइम होगा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस क्या लेंगे, एल माइनस वी एस इंटू टी माइनस वी जीरो इंटू कैपिटल टी अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू द साउंड v प्लस वी नॉट। ठीक है, तो ये T2 मिल गया। ये सेकंड केस में लिया जा रहा है जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर जब एक दूसरे के नजदीक आ रहा है तो उस केस में टाइम आपको क्या मिल गया, T2। अब देखो, अब हमें टाइम इंटरवल निकालना है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, हम बोल रहे हैं, सॉरी, बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन पल्सेस। मतलब फर्स्ट वाला जो पल्स निकल रहा है और सेकंड वाला जो पल्स जो निकल रहा है, दोनों पल्सेस के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, दिस इज टी डैश। तो टी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू व्हाट इज T2 कितना आया था, T प्लस एल माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी माइनस वी जीरो इंटू कैपिटल टी और अपॉन कितना था, v प्लस वी नॉट ना, और इसमें से T1 को माइनस कर देंगे। T1 कितना है, L अपॉन v प्लस वी नॉट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम इंटरवल T डैश। तो बताओ T डैश जो आएगा, दिस इज T प्लस, अब बताओ इसका तुम अलग अलग न्यूमरेटर से डिवाइड कर, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा L अपॉन वी प्लस वी नॉट, और ये वाला जाएगा माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी माइनस वी जीरो इंटू कैपिटल टी अपॉन v प्लस वी नॉट, और बताओ ये हो जाएगा माइनस, और ये कितना है, दिस इज L अपॉन v प्लस वी नॉट ना, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया ना, तो वी एस इंटू कैपिटल टी प्लस वी जीरो इंटू कैपिटल टी। और देखो ये वाला जो टर्म जो होगा, ये देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू, टी को कॉमन ले लो, कैपिटल टी को, तो ये हो जाएगा 1, सॉरी ये माइनस है, प्लस नहीं है, एक मिनट, ये गलती से मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या है, वी एस प्लस वी नॉट, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, v प्लस वी नॉट। ठीक है, और देखो कैपिटल टी कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, तो देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस वी नॉट माइनस वी एस माइनस वी नॉट, और अपॉन नीचे कितना है, v प्लस वी नॉट इंटू कितना है, कैपिटल टी। ओके, तो बताओ यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये देखो प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू आएगा, दिस इज v माइनस वी एस, और अपॉन क्या हो जाएगा, v प्लस वी नॉट। अब बताओ ये तुम्हें क्या मिल गया, दिस इज टाइम पीरियड ना, तो ये तो तुम्हें टाइम पीरियड मिल गया, लेकिन जरा ये बताओ हम लोग को तो फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और कल मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो सॉरी, हाँ ये टी डैश जो होता है, दिस इज 1 अपॉन न्यू डैश, और ये जो कैपिटल टी जो होगा, दिस इज 1 अपॉन न्यू। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1 अपॉन न्यू डैश, और ये हो जाएगा v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई v प्लस वी नॉट टू 1 अपॉन न्यू। अब इसी को रेसिप्रोकल कर दो तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, v प्लस वी नॉट और अपॉन हो जाएगा v माइनस वी एस और इनटू न्यू। ओके, तो देखो ये आ गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही आपको यहाँ पे निकालना था।
लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। ये देखो आपको डायग्राम दिख रहा है, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, एंड सोर्स एंड द स्पीड ऑफ साउंड हैव द सेम डायरेक्शन। सोर्स और साउंड का जो स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ सोर्स और स्पीड ऑफ साउंड दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। और ऑब्जर्वर की स्पीड और साउंड की स्पीड एक दूसरे के अपोजिट है। तो सबसे पहले हम लोग T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, T2 में से T1 को माइनस करेगा और फिर T डैश को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपॉन न्यू डैश, 1 अपॉन न्यू डैश आ जाएगा। और ये जो न्यू डैश जो होगा वही हमारा क्या होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आई थिंक हो जाना चाहिए, आप लोग कर लोगे, हमें नहीं लगता कोई आप लोग को प्रॉब्लम इसमें होना चाहिए। बहुत ही आसान है, T1 निकालना है, T2 निकालना है, T2 में से T1 को माइनस करके T डैश निकाल लो और T डैश को रेसिप्रोकल कर दो, न्यू डैश आ जाएगा। ओके, हो जाएगा, चलो ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यही था आपका कंडीशन, ठीक है। तो यही था जो मैंने आप लोग को बताया। अब देखो, तो हाँ, अभी कितना टाइम हो रहा है, आई थिंक टाइम ओवर हो गया कि अभी बचा हुआ टाइम, ओवर हो गया शायद। ओके, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट टर्म पे हम आप लोग को वेव्स का हम न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, ठीक है। जो एग्जाम के